चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। भारत माता की वंदे इनकलाब। આપણે ઘણા સમયથી જે આપણા લોકલાડીલા નેતાઓની રાહ જોઈ રહ્યા હતા એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ, માનનીય શ્રી ભગવંત માન સાહેબ અને આપણા ગુજરાતના લોકલાડીલા આપણા સૌના લોકપ્રિય એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ। હવે સૌપ્રથમ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રામભાઈ ધડુક, કેતનભાઈ પટેલ, રાજેન્દ્રભાઈ સોલંકી, પ્રવીણભાઈ, આ તમામ મિત્રોને વિનંતી કરીશ કે પુષ્પગુચ્છ આપીને માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ અને ભગવંત માન સાહેબનું સ્વાગત કરશે। ઝડપથી રામભાઈ પાછળ છે, બાકીના મિત્રો પણ સ્વાગતમાં જોડાશે। હનુમાન દાદાના દર્શન કરી અને એમના આશીર્વાદ લઈને માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે। ખૂબ ખૂબ આભાર સમગ્ર ટીમનો। હવે આપણા પ્રદેશના તમામ મિત્રોને વિનંતી કે શાંતિથી આપણે પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી જઈશું। કાર્યકર્તા મિત્રો વ્યવસ્થા સાચવશે। હવે આપણા પ્રદેશના જોઈન્ટ સેક્રેટરી અને માજી મંત્રી એવા માનનીય શ્રી પ્રવીણભાઈ રાઠોડ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આપણી સંસ્કૃતિના પ્રતીક સમૂહ એવું તીર કામઠું આપી અને માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ અને ભગવંત માન સાહેબનું અભિવાદન કરશે। આજે આપણા સૌના આદિ કવિ, આપણા સૌના પ્રિય ગ્રંથ એવા રામાયણના રચયિતા એવા મહર્ષિ વાલ્મીકીનો પણ જન્મદિવસ છે। આદિ કવિ વાલ્મીકીનો આપણે એમને પણ આ પ્રસંગે યાદ કરીએ। બોલો જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। ભગવાન રામના સંસ્કારો, એમનો સદાચાર આપણા સૌના જીવનમાં આવે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। હવે આપણા સૌના લોકલાડીલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને વિનંતી કરીશ કે આવશે અને આપણને આગળનું માર્ગદર્શન કરશે। ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા। હાલો, આપણે બધાય જોરથી એક જયઘોષ કરીએ, ભારત માતા કી। આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા સૌના આદર્શ, લોકપ્રિય, આખા દેશની અંદર જેમના નામની અને કામની ચર્ચા છે એવા આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર, દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, એવા જ આપણા લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી પંજાબ સરકારના માનનીય શ્રી ભગવંત માન સાહેબ, આપણા પ્રદેશના મહામંત્રી માનનીય મનોજભાઈ સોરઠિયા, આપણા ઉમેદવાર શ્રી રામભાઈ ધડુક, આપણા એવા જ બીજા ઉમેદવાર શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનશ્રીઓ, આપણા કિશોર કાકા અને દૂર દૂરથી એક ક્રાંતિની લડાઈમાં ભાગ લેવા પધારેલા આપ તમામ હું ખૂબ ખૂબ બધાનું સ્વાગત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું। છેલ્લા ઘણા દિવસોથી આપણે જોઈએ છે કે ભાજપના માણસો હેરાન કરે છે, તોડફોડ કરે, ગુંડાગીર્દી કરે, બેનરો ફાડી નાખે, ઓફિસો ઉપર જઈ હુમલાઓ કરે, ગાળાગાળી કરે, સોશિયલ મીડિયાની અંદર અભદ્ર શબ્દો લખે, ટીવીની અંદર બેસીને એલફેલ વાતો કરે, અરવિંદ કેજરીવાલની સભામાં આવીને એલફેલ નારાઓ લગાવે, આટલો બધો વિરોધ કરે છે। એટલે મેં એક ભાજપવાળાને પૂછ્યું કે તમે બધાય ભેગા મળીને આમ આદમી પાર્ટીનો અને અરવિંદ કેજરીવાલનો આટલો બધો વિરોધ શું કામ કરો છો? અમારો તો અહીંયા ગુજરાતમાં કોઈ ધારાસભ્ય પણ નથી, કોઈ સાંસદ સભ્ય પણ નથી, અમારી પાર્ટી તો હજુ એકેય ચૂંટણી લડી નથી, છતાંય તમે અમારો આટલો બધો વિરોધ કેમ કરો છો? એટલે એક ભાજપવાળાએ કીધું કે અમારા ભાજપના કાર્યક્રમોમાં પોણા ગુજરાતની સરકારી બસો મૂક્યા પછી માણસો નથી આવતું અને તમારે ત્યાં એમનામ આવે છે એટલે અમને ઈર્ષ્યા થાય છે। કે અમને ઈર્ષ્યા થાય છે કે પોણા ગુજરાતની સરકારી બસો બધી લગાડી દે, તમામ પોલીસ કામે લગાડે, મામલતદારો, ડેપ્યુટી કલેક્ટરો, કલેક્ટરો, તલાટીઓ, શિક્ષકો બધાને કામે લગાડે, ત્યારે મંડપની અંદર માત્ર સરકારી કર્મચારીઓ હોય, એટલા ભાષણ સાંભળવા બેઠા હોય, કોઈ પબ્લિક આવતું નથી અને એની દાજ કાઢે છે એ આમ આદમી પાર્ટી ઉપર, એની ઈર્ષા કાઢે છે આમ આદમી પાર્ટી ઉપર। મારે ભાજપવાળાને કેવું છે, ભાઈ તમારા કાર્યક્રમમાં લોકો ન આવે એમાં અમારે શું વાંક છે? તમે બધા મને જવાબ આપો
કે કોઈ સરકારી બસ મૂકી છે અહીંયા? કોઈ શિક્ષકોને કીધું છે કે ગામડેથી માણસો ભરી ભરીને લાવજો? તમે બધા સ્વખુશીથી મોજ મજાથી અરવિંદ કેજરીવાલને જોવા સાંભળવા આવ્યા છો કે નહીં? એ બતાવે છે કે ગુજરાતની અંદર હવે ઝાડુ ભરી જવાનું છે અને ભ્રષ્ટાચારની ગંદકી સાફ થઈ જવાની છે. અને આ ભ્રષ્ટાચારની ગંદકી સાફ થઈ જશે એ ડરના મારા ભાજપ વાળાને રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી. એટલે અડધી રાત્રે 12 વાગ્યા પછી આપણે ત્યાં એમ કહેવાય છે કે રાતે પછી ભૂત જ ફરતા હોય. 12 વાગ્યા પછી બેનર મારવા નીકળે છે. ભૂત નહીં તો બીજું શું કહેવાય? અને મજાની વાત કે અરવિંદ કેજરીવાલજી એ આપણા બધાના બાળકોના ભવિષ્યની વાત લઈને આવ્યા છે. એમ કે છે કે ભાઈ હું સારી સ્કૂલ બનાવીશ, તમારા બાળકોને સારામાં સારું ભણતર આપીશ, તમે કોઈ બીમાર પડે તો સારામાં સારી આરોગ્યની સારવાર મફત આપીશ, બહેનોને 1000 રૂપિયા સન્માન રાશિ દર મહિને આપીશ, તમારા યુવાન દીકરા દીકરીઓને હું નોકરી આપીશ. આવું સારું વિઝન લઈને આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. આ ભાજપ વાળાએ આપણી શું હાલત કરી કે ભણવા માટે જમીનો વેચી દેવી પડે એના આપણે દાખલા જોયા છે. કોઈના પરિવારમાં કોઈ બીમાર પડે તો ઘરેણા વેચીને કે જમીનો વેચીને કે ગાડી કે મોટરસાયકલ વેચીને પણ ઓપરેશન કરાવવાના કિસ્સાઓ આપણે જોયા છે. મારી વાત સાચી છે? ઘર વેચીને ઘરેણા વેચીને કોઈનો જીવ બચાવવો પડે એ હાલતમાંથી બહાર કાઢીને ઇજ્જતથી કોઈની સારવાર થાય, સન્માન થાય એવી સરકાર બનાવવા માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણા વચ્ચે આવ્યા છે. અને એટલા માટે આ બધા ભય બાળી ગયા છે. તમે મજાની વસ્તુ જો કે સરકાર બદલવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. શા માટે? એક સિમ્પલ દાખલો સમજવા જેવો છે કે ભાજપના ધારાસભ્યને કે ભાજપના સાંસદ સભ્યને કોઈ મામલતદાર કે કોઈ પીએસઆઈ નું કામ પસંદ ન આવે તો એની બદલી થઈ જાય છે કે નથી થતી? ભાજપ વાળાને એક અધિકારીનું કામ ન ગમે તો એની તરત બદલી બીજા જિલ્લામાં થઈ જાય છે. તો ભાજપનું કામ હવે આપણને ગમતું નથી એટલે એની બદલી કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. હવે સરકાર હવે બદલવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. જે કામ ન કરે એને બદલી નાખવાના. અને આ સરકાર કેવી રીતે ચાલે છે? ભાજપ વાળા એમ કહે છે કે ડબલ એન્જિન છે. મેં એક ભાજપ વાળાને પૂછ્યું કે આ ડબલ એન્જિન શા માટે જરૂર પડે છે? કોઈ પણ 2 વ્હીલ હોય 4 વ્હીલ હોય એમાં એક જ એન્જિન આવે, ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલતી હોય છે, તમારે કેમ 2 જોઈએ છે? એણે જવાબ આપ્યો કે અમારી પાર્ટીમાં એટલા ડબ્બા ભર્યા છે, ઢહડવા માટે 2 એન્જિનની જરૂર પડે છે. સારો માણસ એ કઈ છે જ નહીં. બધા ગુંડા, ચોર, લફંગા, બળાત્કારીઓની પાર્ટી છે. બધા ડબ્બાઓને ઢહડવા માટે 2 રાખ્યા છે એટલે ડબલ એન્જિન છે. પણ દોસ્તો એન્જિન ડબલ હોય તો તેલે જાજુ જોઈએ, ખર્ચો જાજો થાય ને આપણે એના 2 એન્જિનનો ખર્ચો ભોગવવાનો થતો નથી. એક ચકાચક મસ્ત આમ આદમી પાર્ટીનું એન્જિન લઈ આવો, એક જ એન્જિન છે, સડસડાટ આપણી ગાડી આગળ વધવાની છે. એકથી કામ હાલે તો 2 શું કામ લગાડવાના? 2 એટલા માટે લગાડ્યા. ગુજરાત વાળું છે એ કાયમ ખરાબ ને ખરાબ જ હોય, એ કામ જ ન આપે. અને છતાંય 2 એન્જિન વાળી સરકાર કેવી રીતે ચાલે છે એનો એક દાખલો આપું કે એક વખત ભાજપની સરકારે એવો આદેશ આપ્યો, સમજવા જેવી વાત છે, વાસ્તવિક નથી, કે આપણા રાજ્યમાં કોઈ ભૂખ્યું ના સૂવું જોઈએ. કડક આદેશ સરકારમાંથી આદેશ નીકળી ગયો કે ભાઈ કોઈએ ભૂખ્યું સૂવાનું નથી આ રાજ્યમાં. અને ભાઈ અધિકારીઓ દોડાદોડ થઈ ગયા. ફૂટપાથ ઉપર રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાં એક ગરીબ ભિખારી જેવો દેખાતો વ્યક્તિ, એકદમ કંગાળ એનું શરીર, સુકાઈ ગયેલો માણસ, ટૂંટિયું વળીને ઊંઘી ગયેલો. અધિકારીએ જઈને 2 ઘોકા માર્યા, જગાડ્યો, ભાઈ ખાઈને હૂતો છો, ભૂખે હૂતો છો? બોલો કે કંઈ ખાવાનો મેળ નથી પડ્યો. તો કે જાગતો રે, ભૂખ્યા હોવાનું નથી. ભૂખ્યા હોવાની સરકારે ના પાડી છે કે કોઈ ભૂખ્યું સૂઈ નહીં શકે. આવી ભાજપની સરકાર છે. તમે શિક્ષણ માગો અને એ લોકો ગાળો બોલે. આપણે દવાખાનાની માંગણી કરીએ એ લોકો ધમકાવે. આપણે જે કાંઈ આપણા અધિકારો માંગીએ એ અધિકારો આપવાના બદલે આખા ભાજપ વાળા ભેગા મળીને અરવિંદ કેજરીવાલજીને ગાળો આપે છે દોસ્તો. અને મજાની વસ્તુ જો કે ગુજરાતમાં ભાજપના જેટલા પણ નેતાઓ છે એ રોજ જાગીને આમ આદમી પાર્ટી વિશે જેમ ફાવે તેમ બોલે ને એમ બોલે કે આમ આદમી પાર્ટી જીતવાની નથી, આમ આદમી પાર્ટીનું કંઈ નહીં આવે,
વળી બાકી રહેતું તો ગુજરાત બહારથી પણ બધા આવે. કોઈ વડોદરામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને બોલે કે આમ આદમી પાર્ટી નહીં જીતે, કોઈ રાજકોટમાં જઈને બોલે, કોઈ સુરતમાં, કોઈ વલસાડમાં. આખા દેશના ભાજપ વાળા અહીંયા આવીને એવી જાહેરાત કરે છે કે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં જીતશે નહીં. મને એમ વિચાર આવે છે કે નથી જીતવાની તો તમે ત્યાંથી ઠેકથી અહીંયા ક્યાં આણું લઈને આવ્યા છો? નથી જીતવાની છો જ્યાં છો ત્યાં પડ્યા રહ્યો. દિલ્હીથી અહીંયા આવીને એમ કહે છે કે નહીં જીતે, એનો મતલબ એમ છે કે આમ આદમી પાર્ટી જીતવાની છે. તમને તમારો ડર અહીંયા સુધી ખેંચીને લાવ્યો છે. તમને ડર લાગ્યો છે કે દુકાન બંધ થઈ જશે, પણ દુકાનને તાળું મારવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે, ભ્રષ્ટાચારની દુકાન. અને એના માટે આપણે બે વાતની કાળજી લેવાની છે દોસ્તો. બે વાતની ખૂબ કાળજી બધાએ લેવાની છે. એક, કે આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે બધા અહીંયા અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવંત માન સાહેબની સભામાં આવ્યા છો, રાજી ખુશીથી આવ્યા છો. અમને ખબર છે કે રસ્તામાં તમને કોઈએ ચાય નહીં પીવડાવી હોય, છતાંય તમે અહીંયા આવ્યા છો. આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે આવ્યા છો, છતાંય ટીવીમાં નહીં આવે. ટીવીમાં એમાં અરવિંદ કેજરીવાલનો અવાજ અને આમ આદમી પાર્ટીની વાત પહોંચાડવાની છે દોસ્તો. આટલા બધા માણસો નથી આવતા ટીવીમાં. અને પોણા ગુજરાતની સરકારી બસો મૂકીને કરોડો રૂપિયા સરકારના પૈસા બગાડી 2000 શિક્ષકોને સભામાં બેસાડે તો ટીવીમાં ભરાઈને આવે લાખોની જનમેદની આવી ગઈ. જનમેદની નથી, શિક્ષકો બેહાડ્યા છે. તલાટીન શિક્ષકો કોઓપરેટિવ મંડળીના માણસો. પહેલું કામ કે ટીવીમાં કે છાપામાં આમ આદમી પાર્ટીની વાત આવે કે ન આવે, આપણા મોબાઈલના માધ્યમથી આપણે ઘર ઘર સુધી પહોંચાડીશું કે નહીં પહોંચાડીએ? બધા પહોંચાડશે કે નહીં પહોંચાડે? અને બીજી વાત કે આખા ગુજરાતની અંદર ભાજપ વાળાને જે ડર લાગ્યો છે એના કારણે એ બોખલાઈ ગયા છે, જેમ ભાવે તેમ કરવા લાગ્યા છે. આપણે એની સામે લડી લેવાનું છે દોસ્તો. એક સૈનિકની જેમ, એક યુદ્ધની ઉતરેલા મેદાનની જેમ આપણે લડવાનું છે. તૈયાર છો બધા લડવા માટે? અને હાવ છેલ્લી બે વાત કે 12મી તારીખથી ભાજપ પાર્ટી વાળા એક ગૌરવ યાત્રા કાઢવાના છે. ખબર છે બધાને? આખા ગુજરાતમાં યાત્રા કાઢવાના છે. 5 યાત્રાઓ નીકળશે, આખા ગુજરાતની અંદર ફરશે અને ભવ્ય તામઝામ સાથે નીકળશે. 5 યાત્રાઓ, ગૌરવ યાત્રા નામ આપ્યું છે. ભાજપના એક ચાલુ મંત્રીએ એવું જણાવ્યું છે. મેં એને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ગૌરવ યાત્રા શું કામ કાઢો છો? કઈ વાતનું ગૌરવ લેવાનું છે? તમે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો એનું ગૌરવ લેવું, કે શિક્ષણની અંદર ખાનગીકરણ કર્યું એનું ગૌરવ લેવું, કે બુટલેગરો જેમ પાવે એમ દારૂ વેચે છે એનું ગૌરવ લેવાનું છે, કે તમારા જ મળતિયાઓએ ગૌચર દબાવી દીધા એના ગૌરવ લેવાના છે? શેનું ગૌરવ? ભાજપ વાળાએ કીધું કે આ ગૌરવ યાત્રા એટલા માટે કાઢી છે ગામે ગામ હજુ કેટલા અંધભક્તો વધ્યા છે એ ખ્યાલ આવે અમને. હવે યાત્રા નીકળે ખબર પડે ને કેટલા વધ્યા છે. સર્વે કરવા માટે યાત્રા કાઢી રહ્યા છે. આપણે બધાએ દોસ્તો સાવધાન રહીને આમ આદમી પાર્ટીને આગળ વધારવાની છે. આપણા ગુજરાત માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી એક સારું લક્ષ્ય લઈને આવ્યા છે. એમ કહેવાય છે કે અર્જુનને માછલીની આંખ દેખાતી હતી. જ્યારે એને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ શું દેખાય છે, એણે કીધું કે મને માછલીની આંખ દેખાય છે. ભાજપ વાળાને શું દેખાય છે અને આપ વાળાને શું દેખાય છે એ સમજવાની જરૂર છે. અત્યારે આમ આદમી પાર્ટીનો જુવાળ વધ્યો, આમ આદમી પાર્ટીની તાકાત વધી, ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટીની ગેરંટી ઉપર વિશ્વાસ વધ્યો, તો આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને વિધાનસભાની ટોચ ઉપર લટકતો રાષ્ટ્રધ્વજ દેખાય છે કે આ આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી લહેરાવશે. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાને સરકાર દેખાય છે, આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાને ક્રાંતિ દેખાય છે. ભાજપ વાળાને શું દેખાય છે કે 5 કરોડનો રોડનો કોન્ટ્રાક્ટ હવે નહીં મળે એટલે એને બરાડા પાડતો દેખાય છે, કે કટકી નહીં મળે, કરપ્શન કરવા નહીં મળે, સેટિંગ કરવા નહીં મળે. બે તરફ પોતાના લક્ષ્ય રાખીને બેઠેલા લોકો છે. એક બાજુ કરપ્ટ લોકો, ભ્રષ્ટાચાર વાળા લોકો, કટકી વાળા લોકો એ એમનું લક્ષ્ય લઈને બેઠા છે. કોઈ પણ ભોગે ભાજપની સરકાર આવે તો કટકી કરવા મળશે. એક બાજુ આપણી જેવા ઈમાનદાર લોકો છે જેમ ઈચ્છે છે કે આમ આદમીની સરકાર આવશે તો આપણા જેવા હજારો લોકોના બાળકોને મફત ભણવા મળશે, 300 યુનિટ વીજળી મળશે, સન્માન મળશે, એક ઈમાનદાર સરકાર મળશે. તો દોસ્તો આ લડાઈની અંદર આપ તમામ ખૂબ સારું યોગદાન આપી રહ્યા છો. હું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આવીને આવી મજબૂતીથી આપણે ગુજરાતની અંદર બદલાવ લાવીએ એ જ શુભેચ્છા સાથે
આ દિવાળીએ મહા સાફ સફાઈ અભિયાન કરીને ઝાડુ મારીને ભાજપની ગંદકી સાફ કરવાનો સંકલ્પ લઈને અહીંથી જવાનું છે. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. હલો, ખૂબ ખૂબ આભાર ગોપાલભાઈ. ગોપાલભાઈએ વાત કરી, મંચ ઉપર આપણા બે નેતાઓ બેઠા છે, બે આપણા સૌના આદર્શો બેઠા છે. એમાંથી એક મુખ્યમંત્રી છે 7 વર્ષ જૂના મુખ્યમંત્રી છે, અને એક મુખ્યમંત્રી છે જે 7 મહિના મુખ્યમંત્રી છે. આપણા માટે ગર્વ લેવા જેવી વાત છે કે આ 70 વર્ષ જૂની સરકારો આ 7 મહિના ને 7 વર્ષ જૂના મુખ્યમંત્રીઓથી, નેતાઓથી ડરે છે. કારણ કે એ તમારા અધિકારની, તમારા શિક્ષણની, તમારા આરોગ્યની વાત કરે છે. હવે આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત થયેલા પંજાબનું ઘરેણું અને પંજાબનો સિંહ એવા માનનીય સરદાર ભગવંત માન સાહેબને, પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપણને આગળની વાતો કહેશે. मंच पर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, जिनकी पूरी दुनिया में अच्छे कामों की चर्चा होती है, अरविंद केजरीवाल जी, भाई गोपाल इटालिया जी, हमारी गुजरात की सारी टीम, दर्जा बदर्जा वॉलंटियर साहबान और पार्टी की रीढ़ की हड्डी और गुजरात की तरक्की की उम्मीद लेकर, अपने परिवार की तरक्की की उम्मीद लेकर, अच्छी शिक्षा की उम्मीद लेकर, रोजगार की उम्मीद लेकर, अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए. भारी संख्या में बुजुर्ग, युवा, माएं, बहनें, बच्चे, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल. दोस्तों, कड़ोदरा में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है. मेरे कोई भुआ का बेटा या मौसी का बेटा यहां नहीं रहता कि मैंने उसको कोई ठेके दिलवाने हों सड़क के, सरकार बना के, मैंने उसके लिए कोई और भ्रष्टाचार करना हो. मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और हजारों शहीदों ने जब देश आजाद कराया था तो पूरा देश आजाद कराया था. अकेली दिल्ली और पंजाब नहीं, मैं भी चाहता हूं पूरा देश भ्रष्टाचार से आजाद हो. आपको बात बताने बहुत खुशी हुई. गुजरात में हम गांधी धाम गए, गुजरात में खेड़ ब्रह्मा गए, सुरेंद्रनगर गए, दाहोद गए, धर्मपुर गए, आज आपके पास आए हैं. इतने शहरों के नाम शायद बीजेपी के मुख्यमंत्री को याद नहीं होंगे. हम लोग पहाड़ों में गए, आदिवासियों के पास गए, व्यापारियों के पास गए, युवाओं के पास गए, महिलाओं के पास गए. सब लोग यही कह रहे हैं, हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे. कितने साल हो गए? 27 साल. मैंने कहा 27 साल हो गए. कहते क्या करें, वोट नहीं डालते फिर भी जीत जाते हैं. और जब डालने जाते हैं और कोई बटनी है नहीं, कांग्रेस को वोट दें वो बिक जाते हैं, उनके एमएलए उधर ही चले जाते हैं. मैंने कहा इस बार क्या सोचा? कहते भगवान ने चुनाव चिन्ह भी ऐसा भेजा है जो सफाई करता है, और सामने कमल का फूल है जो कीचड़ में उगता है. झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, कमल उगेगा नहीं. जैसे दिल्ली में नहीं होगा, जैसे पंजाब में नहीं होगा. इस झाड़ू से, इससे पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा. बहुत राजनीतिक गंदगी हो गई है यहां पे, लूट लिया इन्होंने.
हमारे हिस्से की सड़कें खा गए, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के इलाज की दवाई खा गए, हमारे नौजवानों के रोजगार खा गए, कॉलेज खा गए, यूनिवर्सिटियां खा गए, सब कुछ बेच दिया। जहाज बेच दिए, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेचा है। खरीदी सिर्फ एक चीज है, मीडिया। वो बेचारे क्या करें, उनके दफ्तर में छापे पड़ते हैं, उनसे कहा जाता है ये खबर लिखो, लोगों को ये दिखाओ। कभी हमारी फोटो देखी है आपने टीवी पर? जिस दिन फोटो आते हैं साथ में गालियां देते हैं। गालियों के बिना फोटो नहीं आती हमारी। भाई हमने कौन सा गलत काम कर दिया? दिल्ली में पहले क्या होता था, जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या होता था? बिजली टाइम पे आए ना आए, बिल टाइम पे आता था। पंजाब में भी ऐसा होता था, गुजरात में भी ऐसा होता है। अब दिसंबर में जब सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की गुजरात में, बिजली टाइम पे आएगी, बिल नहीं आएगा। पंजाब में 50 लाख घरों को जीरो बिल आया इस बार। 1 जुलाई से हमने वहां बिजली फ्री की। अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा। वो एक दूसरे को बिल दिखा रहे हैं, पढ़ के देखना यार ये जीरो जीरो कैसे आ गया। आ गया भाई, नीयत साफ है। हमने कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं रखी हुई। पैसा कहां से आएगा? ये कहते रहते हैं, ये केजरीवाल कहता है ये फ्री कर दूंगा, ये पैसा कहां से आएगा? अरे पैसा इन्हीं के बीच में है, आप ही में से पैसा निकालेंगे जो आपने लूटा है। इनकी प्रॉपर्टियां, इनके बैंक बैलेंस, बच्चों के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। भ्रष्टाचार बंद कर दो, पैसा ही पैसा। और भ्रष्टाचार बंद करके जो पैसा बचता है वो लोगों को दे दो, लोग दुआएं देते हैं। और दुआ जो है ना, वो भगवान की कचहरी में सबसे पहले सुनी जाती है। आम आदमी की दुआ, गरीब की दुआ। ये बद्दुआएं लेते हैं, ये पर्चे करते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं। पंजाब में भी ऐसी करते थे ये। इसका एक तरीका बताता हूं मैं। ये जब कुछ आपको वोट के लिए नोट देने आए, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है गुजरात वालों को, मना मत करना। घर पे लक्ष्मी आए, मना मत करना। तुम्हारे ही पैसे हैं भाई, तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। और इनको बोल देना कि हाँ, वोटिंग वाले दिन अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कह देना कि हाँ। जिस जिसको समझ आ गई ये बात वो ताली बजा सकता है, बाकी को माफ है। अरे क्या समझदार लोग हैं भाई, समझ गए ना? ऐसे ठीक आएंगे ये। लोहे को लोहा काटता है भाई, जहर को जहर मारता है। पंजाब में 6 महीने में हमने 20,000 के आसपास, 20,000 6 महीने में सिर्फ सरकारी नौकरियां निकाली, पोस्टें निकाली और नियुक्ति पत्र दे दिए। अभी 14, 15, 16 अक्टूबर को पुलिस की भर्ती का पेपर है। कांस्टेबल रखे जाएंगे, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, और पेपर होगा बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शी से। पेपर पंजाब में और दिल्ली में फूटता नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं इस बात को कि युवा जो है वो पढ़ाई करता है आधी रात तक, फिर सुबह उठ के फिर पढ़ाई करता है कि मैं कुछ कर दूंगा, शायद एक किताब मेरी और मेरे परिवार की किस्मत बदल देगी। लेकिन जब 2 दिन पहले पेपर फूट जाता है तो उसका दिल
टूट जाता है। पेपर फूटा सपना टूटा। अब मैं आपको एक और सलाह देता हूं। अब आप बीजेपी का चुनाव वाला पेपर फोड़ देना इस बार, ताकि आपको महीना डेढ़ महीना पहले ही पता चल जाए कि कैसे जीतते हैं ये कौन कौन से जुमले लेके आते हैं, कौन सी बातें ऐसी बोलते हैं जिसमें समाज में बंटवारा होता है। इनके वाला पेपर फोड़ दो इस बार। पंजाब में करप्शन के लिए बहुत बड़े बड़े अड्डे खुले हुए थे, जैसे आपके यहां सरकारी अड्डे, जहां भी जाओ पैसे मांगते थे। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया आते ही कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी भी दफ्तर में आपसे रिश्वत मांगता है, पैसे मांगता है, तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लेना, उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम हमारा है। 10-15 दिन तो ठीक चला। अब जो रिश्वत खाने की आदत हो जाए ना, फिर वो कोई तरीका निकालता है। तो अधिकारियों ने बाहर लिख के लगा दिया, मोबाइल फोन अंदर लाना मना है। हमने कहा भी ये कौन सा कोई यहां पे कोई इतनी कोई देश की सुरक्षा की अंदर कोई बड़ी मीटिंग चल रही है सीक्रेट, क्यों नहीं? तो हमने कहा जिस अधिकारी ने ये लिखा अपने दफ्तर के बाहर कि मोबाइल अंदर ले जाना मना है, उसको हम करप्शन मानेंगे, उसको भी सस्पेंड करेंगे। तो भाई साहब, आज पंजाब में करप्शन नहीं है। दिल्ली में पहले ही बंद कर दिया था काम। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली है। गुजरात में भी होगा। और आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है। 8-9 साल पुरानी पार्टी है। 2 स्टेटों में, 2 राज्यों में गवर्नमेंट है, 10 एमपी राज्यसभा में है। ये अभी आज अक्टूबर का पहला हफ्ता है, आज ये 2 है, दिसंबर में इसमें ऐसे हो जाएगा 3, गुजरात का नंबर आएगा। और किसने लाना नंबर? आप लोगों ने। इनसे पीछा छुड़वाओ। जब आप वोट करने जाते हो, इस बार एक बात याद रख लेना कि भगवंत मान आया था, वो ये बात कह के गया था कि वो बटन जो है, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होता है, वो बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही तीर कमान का है, वो बटन ना ही किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। झाड़ू वाला बटन दबा दोगे, किस्मत चमक जाएगी बच्चों की, परिवार में खुशहाली आएगी। और दूसरा बटन दबा दोगे तो 27 साल जो पहले दबाते रहे हो, तो यही हाल रहेगा। अभी ये हाईवे तो ठीक है, जब नीचे उतरते हैं, सड़कें देखी मैंने गुजरात की। मैंने मुख्यमंत्री साहब को, अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि जी मैं कमाल है गुजरात में। कहते क्या? मैंने कहा मैं सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। कहीं कहीं सड़क भी आती थी। तो इतना बुरा हाल कर रखा है, और इतने बजट है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जनता को इन्होंने लावारिस छोड़ रखा है। लावारिस, किस्मत पे छोड़ रखा है। बस जियो मरो, आपकी किस्मत। पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, तो फिर हम क्यों चुनते हैं इनको? भाई ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, इस साल आप भी बदल दो बस। पेड़ भी खुश हो जाएंगे, नया सूरज उदय हुआ है, ठंडी हवा, ईमानदारी की हवा चली है, पेड़ भी खुश हो जाएंगे। तो ये गालियां देते हैं, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, हमारे बारे में नाप शनाप बोलते रहते हैं, बोलते रहने दो। पंजाब में भी ऐसे करते थे। ये असल में हारने की निशानी होती है।
जब दिया बुझने लगता है तो ज्यादा फफ करता है। इनके दिए बुझ रहे हैं भाई। अब अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात, और अगर राजनीति में रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। करो बात स्कूलों की, नहीं करते। करो बात अस्पतालों की, नहीं करते। इधर उधर घुमाते हैं। पता नहीं क्या, मतलब हमारे यहां पता नहीं आज शाम को गरीब को, ये पता नहीं आज रात को खाना मिलेगा या ना मिलेगा। टीवी पर चल रहा होता है पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपए किलो हो गए। भाई हमने क्या लेना है उनसे यार? हमारा बताओ टमाटर के रेट क्या है? हर महीने आप गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ा देते हो। हर महीने महंगाई इतनी है, चूल्हे चल नहीं रहे, और इतनी भारी संख्या में माएं बहनें आई हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये भी परिवर्तन के लिए आई हैं, क्योंकि रसोई ये चलाती हैं। इनको पता है। आना चाहिए आपको। राजनीतिक रैलियों में आइए, सुनिए और उसके बाद मन बनाइए। अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकते। एक बात ये कह रहे हैं 15-15 लाख हर आदमी के खाते में आएगा। आ गया जी? हैं जी? आया नहीं। हमारे भी नहीं आया, पंजाब में नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में खर्चे के लिए 1000-2000 पड़े थे वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं नोटबंदी की वो महिलाएं हैं। महिलाओं को एक अच्छी आदत होती है, माएँ बहनों को एक अच्छी आदत होती है, आदत बहुत अच्छी है, कि वो अलग से पैसे रख लेती हैं। कई बार अपने पति को नहीं बताती, चलो कोई इमरजेंसी के लिए, अस्पताल के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई अलग से रख लेती हैं। अब रख लिए। अब उनको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। रातों रात मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। अब सुबह उठी, बताती हैं तो पंगा, छुपाती हैं तो पंगा। बताएंगी घर पे झगड़ा होगा, हस्बैंड कहेगा कहां से लाई पैसे। नहीं बताएंगी कागज बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इतनी मुश्किल से जोड़े थे, बचत की थी। तो मैंने पंजाब में एक रैली में ऐसी जनसभा में बोल दिया। तो मैं गाड़ी में बैठने लगा, 2 माएँ एक बहन आई, मेरा सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा जो आपने नोटबंदी वाली बात बोली थी बिल्कुल सही है, हम भी माइके से बदलवा के लेके आए हैं। यहां भी माइके वाली बहुत बैठी होंगी। कमाल है। क्या हुआ भाई? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गरीबी दूर हो गई, महंगाई कम होगी। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस वैसे कर दी। सो दोस्तों, अच्छे आदमियों को विधानसभा में चुनकर भेजो। ईमानदार आदमियों को भेजोगे तो ईमानदारी के कानून वहां बनेंगे। भ्रष्टाचारियों को भेजोगे तो भ्रष्टाचारी कानून बन के बाहर आएंगे। ईमानदार लोगों को आप भेजो। इस बार आम आदमी पार्टी आपके द्वार पे आई है। हम घर घर जा रहे हैं, हमारे वॉलंटियर जा रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो कहते ही नहीं है। केजरीवाल जी ने हम सबको ये बोला हुआ है कि 5 काम करने हैं तो 5 ही बोलो। 5 करके 6 कर दो, लोग शाबाशी देंगे, यार बोले 5 थे फिर भी 6 कर दिए। 6 बोल के 5 करोगे तो लोग कहेंगे यार वादे पूरे नहीं किए। तो इसलिए हम 100% से ऊपर वाली पार्टी है। हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि गारंटी है इस बात की। एक ही नेता है जो गारंटी देता है, और मैंने जब से होश संभाला है एक ही नेता है जिसने एक ऐसा बात बोली कि दिल को छू गई लोगों के। दिल्ली में चुनाव से 2020 के चुनाव से 1 महीना 1.5 महीना पहले टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा, मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, 2 करोड़ दिल्ली वासियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे पिछले 5 साल वाले काम पसंद हैं तो मुझे वोट दे देना, अगर नहीं पसंद तो वोट मत देना। ये को कह सकता है?
ये वही कह सकता है जो सच्चा है। ये तो लगे हुए हैं 5 साल मौका और दे दो, 5 साल और दे दो। कितने हमारे मौके खत्म हो गए यार, इनके मौके मांगने की तरीक नहीं बदली। तो अपनी किस्मत खुद लिखो, देश को खुद चलाओ, प्रदेश को खुद चलाओ, अपने में से एमएलए निकालो, अपने में से एमपी निकालो। इनके बेटे बेटियों ने क्या ठेका ले रखा है, इन्होंने बनना चेयरमैन? हमारे बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन हम ये सोच लेते हैं चलो हमने क्या लेना है। हमने क्यों नहीं लेना, देश हमारा है, हमने इनसे हिसाब लेना है। हिसाब लेके जो लूटा हुआ पैसा, एक एक पैसे का हिसाब लेके वो जनता को देना है, पब्लिक को देना है, स्कूलों के रूप में, अस्पतालों के रूप में। तो मैं यही कहूंगा आज के दिन कि इतनी भारी संख्या में आपका आना, ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई वाली बात है। बहुत हौसला बढ़ गया हमारा। पंजाब से भी मेरे कुछ पंजाबी भरा बैठे ने, सत श्री अकाल जी। तो पंजाबी जहां जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं। आप जाओगे ट्रांसपोर्ट में, सब पंजाबी हमारे भाई मेहनत करते हैं दिन रात और काम बढ़ाते हैं, रोजगार भी देते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। तो आप भी सब बताते रहो, इनको बता दो कि पंजाब में, क्योंकि आप लोग के रिश्तेदार दोस्त मित्र वहीं पे हैं, तो इन सबको बता दो कि पंजाब में 6 महीने में एक नया सूरज दिखने लगा है, नजर आने लगा है, कुछ तो हुआ चेंज। जितना सत श्री अकाल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाने हैं। वो नारों से भी पता चल जाता है। यहीं कहीं बैठे होंगे कुछ नेता, तो इतने आसपास बैठे होंगे, पता करने आए होंगे कितने लोग आए हैं। कुछ बीच में भी बैठे होंगे सीआईडी वाले, तो उन्होंने बताना होता है कि जी नारे में इतना जोश था, क्योंकि ये पूछते हैं जब नारे लग रहे थे जोश कितना था, उसी से पता चल जाता है। एक बार क्या हुआ, रामलीला ग्राउंड में बीजेपी की रैली 2015 में, रैली लाइव चल रहा था टीवी पर, मैं केजरीवाल जी के पास बैठा था, दिल्ली में लाइव देख रहे थे। तो जब नारे लगने लगे तो मैंने नारा देखकर मैंने कहा जी आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे से पता चल जाता है। स्टेज से नारा लग रहा था कि बीजेपी जिंदाबाद, लोग कह रहे थे बीजेपी जिंदाबाद। मैंने कहा हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, ये तो दिहाड़ी पे आए हैं, पैसे लेके आए हैं, ये वोट नहीं डालने वाले। और जब नारा दिल से लगता है, आपने भगत सिंह के बुत देखे होंगे, ऐसे होता है, गर्दन सीधी, हाथ भी सीधा। वही नारा आज से आपसे लवाऊंगा ताकि इनको पता चल जाए कि जनता बाहर आ चुकी है गुजरात की। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सत्कार से मुझे सुना, बहुत दिल को खुशी हुई। आप तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करिए, बहुत बहुत मेहरबानी। हेलो, खूब खूब आभार તમામ મિત્રોને। એક સૂચના કે આપણે કાર્યક્રમના અંતે રાષ્ટ્રગાન ગાઈને આપણે છૂટા પડીશું, એટલે સભા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની જગ્યા ન છોડે, પોતાનું સ્થાન ન છોડે। હવે આપણે સૌ જે આતુરતાથી જેમને સાંભળવા માટે ઘણા સમયથી 4-5 કલાકથી બેઠા છીએ, એવા આપણા સૌના રાષ્ટ્રીય આદર્શ અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવશે અને આપણને માર્ગદર્શન કરશે। બોલો ભારત માતા की। एक बार जोर से दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। इतनी दूर दूर से इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? मजामा?
हम लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं लोग इतनी खुशी से, इतने जोश के साथ स्वागत करते हैं। अभी इतनी भारी संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं। आज दोपहर हम धर्मपुर गए थे, वहां पे 1.5 लाख लोगों की सभा हुई थी, 1.5 लाख लोगों की सभा। मुझे अभी भी गोपाल भाई बता रहे थे कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आज तक बीजेपी भी उस मैदान में इतनी बड़ी सभा नहीं कर पाई, और लोग अपने आप आ रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, अपने आप। कल दाहोद गए थे, दाहोद में 1 लाख लोगों की सभा, अपने आप लोग आ रहे हैं। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। भगवंत मान 7 महीने के मुख्यमंत्री हैं, मैं 7 साल का मुख्यमंत्री हूं, इनकी 27 साल की सरकार है। जितने काम भगवंत मान ने 7 महीने में कर दिए, उतने इन्होंने 27 साल के अंदर भी नहीं किए। मैं चैलेंज करता हूं, कौन कौन बदलाव चाहता है, जरा हाथ खड़े करें। पक्की बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आईबी का नाम सुना है? आईबी एक केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जासूसी करवाती है, आईबी से। आईबी ने गुजरात के अंदर घूम घूम के एक रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हवा चल रही है। वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी है, सरकारी रिपोर्ट है, मैंने नहीं बताई, मैंने नहीं बनाई, सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बन रही है। अभी आज की डेट में थोड़ा सा मार्जिन पे है, 93-94 सीट आ रही है, 1-2 सीट ज्यादा है बस। एक जोर का धक्का मार दो, 150 पार कर दो आप लोग। धक्का मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा जोर से, 150 पार कर दो। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी। पंजाब में 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, 2 सीट बीजेपी को। बीजेपी को 2 आई है ना, 2 सीट बीजेपी को। यहां गुजरात में कितनी देनी है बीजेपी को? पक्की बात। तो दोस्तों 1 दिसंबर को सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है, मैंने गुजरात में मैं 3-4 महीने 6 महीने से घूम रहा हूं, लोगों से खूब बात की है और पूरा प्लान बनाया है कि गुजरात का विकास सबके साथ, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ गुजरात का विकास कैसे करना है। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को पिछले 27 साल में, कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में। एक एमएलए है इनका, मेरे को पता चला चुनाव के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन। इन्होंने इतनी जमीनें खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतने मकान बना लिए, इतना पैसा भेज दिया विदेशों में, अपने बच्चों के नाम जमीन खरीद ली, माँ बाप के नाम जमीन खरीद ली, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ले ली, बच्चों के बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए उनके नाम प्रॉपर्टी ले ली इन लोगों ने। इतना पैसा बना लिया, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे कैसे घाटे में चल रही है यार? हर साल गुजरात सरकार
2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़। कैसे सरकार घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो। अभी मान साहब ने आपको बताया, हर चीज पे टैक्स लगता है। रोटी खाने बैठते हैं, रोटी पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, दूध पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, छाछ पे टैक्स लगता है, पंखे पे टैक्स लगता है, कुर्सी पे टैक्स लगता है, माचिस पे टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। टैक्स दे दे के हम तंग आ जाते हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं टैक्स के। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में हर साल गुजरात सरकार ने हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी? कोई सड़क? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई दवाई का इंतजाम किया इन्होंने आपके बच्चों के लिए? कोई कुछ काम करा इन्होंने आपके लिए? 27 साल में एक काम करा इन्होंने? कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक पैसे का एक एक गुजरात का पैसा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। ये पैसे की लूट बंद करेंगे। जितना पैसा इन्होंने लूटा वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे। इनके जितने इन्होंने लूट रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, सारी जब्त करेंगे प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस लेके आएंगे। ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? अरे जितना पैसा तुमने लूटा है उसमें तो सारे 10 साल की गुजरात के सारे लोगों की बिजली माफ हो जाएगी, जितना इन लोगों ने लूट रखा है। इतना पैसा इन्होंने। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में हमारे अपने एक मंत्री हमारा गड़बड़ कर रहा था। हमारा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर भगवंत मान को पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान चाहते तो दबा सकते थे। इनके कान में आके किसी ने कहा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने चुपके से पता कराया तो पता चला हां गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने पता है क्या किया? उस मंत्री को जेल भेज दिया, अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी कोई करता है? कोई सीएम अपने खुद के मंत्री को कभी जेल भेजता है? 75 साल में आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, अब एक कट्टर ईमानदार पार्टी आई है, कट्टर ईमानदार सरकार चल रही है पंजाब और दिल्ली के अंदर। अपनों को भी नहीं बख्शते। हमारा बेटा, हमारा भाई भी कल गड़बड़ करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, जेल भेज देंगे उसको। तो गुजरात को एक ईमानदार सरकार देंगे। इन नेताओं के जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। और 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे हैं, सारे पेपर फोड़ने वाले जितने ये मास्टरमाइंड बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इनको 10 साल की जेल भेजेंगे। आप लोगों को अपने काम कराने के लिए 10 दफ्तर रिश्वत देनी पड़ती है। देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, कुछ भी काम हो, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिना रिश्वत के काम होगा गुजरात के दफ्तरों के अंदर। और दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दफ्तर बंद कर देंगे। दिल्ली में हमने सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। अब अगर आपको कोई काम कराना है, आप फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आके काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अफसर आपके घर आएगा, काम करेगा, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई दलाल नहीं होगा, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। खूब पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होने से खूब पैसा बचेगा। दोस्तों, कल मैं गुजरात आया,
इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे चारों तरफ, इतने होर्डिंग मेरे खिलाफ लगा रखे थे। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूं, जनता के हित की बात करता हूं, इनके भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता हूं। इन्होंने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे। उस पोस्टर में एक मेरी फोटो थी। कोई बात नहीं, लगाओ मेरी फोटो। उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ इतनी गंदी बातें लिखी हुई थी। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान का अपमान किया हुआ था इन्होंने, भगवान के खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कौन होता है, कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ लिखते हैं? कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं? पुराने जमाने में राक्षस होते थे जो ऋषि मुनियों की तपस्या तोड़ते थे। राक्षस होते थे जो भक्तों की तपस्या तोड़ते थे, उनको राक्षस कहते थे। जो गांव में घुस के मारकाट करते थे, हुड़दंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको राक्षस कहते थे पुराने जमाने में। ये राक्षस ही हैं, ये कंस की औलाद हैं ये सारे के सारे, जो भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, लोग जो पूजा करते हैं उनका अपमान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये राक्षस हैं, राक्षस की योनि में पैदा हुए हैं, ये कंस की औलाद हैं। ये मैं हनुमान जी का भक्त हूं, कट्टर भक्त हूं हनुमान जी का, और बड़ी कृपा है हनुमान जी की मेरे ऊपर। और इनको मैं बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन पे हुआ था। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। बचपन में मेरी दादी जी मुझे कृष्ण कह के बुलाया, मेरा घर का नाम कृष्ण था। और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम दे के भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। और जनता जनार्दन होती है, जनता में भगवान का रूप होता है, जनता जनार्दन होती है। भगवान का ये काम पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे? इनका सबका मिलके गुजरात के अंदर एक शांति प्रिय सरकार लेके आनी है, जो स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए, सड़कें बनवाए, लोगों के लिए काम करे। ये गुंडागर्दी की गंदी राजनीति खत्म करनी है अपने को, सबको मिलके करनी है। भगवान का काम पूरा करना है अपने को, करना है कि नहीं करना है? तो अब ये जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे खूब सारे काम करने हैं, खूब पैसा बचेगा। ये जो कहते हैं पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा 5 साल के अंदर इतना पैसा है सरकार में। सबसे पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोगों की। 1 मार्च से, नोट कर लो, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। आपके पुराने जितने बिजली के बिल हैं, किसी का 70,000 बकाया है, किसी का 80,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, आपके पुराने बिजली के बिल सारे माफ, नए बिजली 0, तो आपका 0 बिजली का बिल आया करेगा 1 मार्च के बाद से 0। पुराने भी नहीं देने। दिल्ली में भी कर दिया, पंजाब में भी कर दिया। मैं यहां के कोई झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली में, पंजाब में आपका कोई दोस्त हो तो फोन करके बोल देना, सबके बिजली के बिल 0 आते हैं। वहां पे बिजली के बिल 0 आते हैं, बिजली 24 घंटे आती है। ये तो चमत्कार है, मैजिक है कि नहीं है? दुनिया में 3000 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 0 बिजली का बिल और बिजली आती है 24 घंटे। ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। मेरे को ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ है, केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में करा, फिर पंजाब में करा, अब यहां भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। ये लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। बीजेपी वाले इतनी गालियां देते हैं मेरे को, इतनी गालियां देते हैं गंदी गंदी। केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। अगर मैं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है।
भाई अगर सीएम को और मंत्री को मिल रही है तो जनता को भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और एक काम करेंगे, इतनी मां बहनें आई हुई हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। अगर किसी के घर में 2 महिलाएं, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, तो दोनों को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, उनको 3000 अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? सारी मां बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए। क्योंकि ये मेरे को गालियां बहुत देते हैं इनकी, मैं कुछ नहीं सुनता इनकी, ये बहुत गालियां देते हैं। महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, बिगड़ जाएंगी महिलाएं। अरे तुम इतना पैसा खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं कैसे बिगड़ जाएंगी? હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી। तुम्हारो भाई आवी गयो छे। मैं सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं, दिल्ली में हमने बहुत सारे स्कूल बनवाए हैं, शानदार नए नए स्कूल बनवाए हैं, जहां अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। फ्री शिक्षा है, सब कुछ फ्री मिलता है। एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली के अंदर इतना शानदार, इतने स्कूल बनवा दिए, 5 स्टार स्कूल। अब वहां पे मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बेटा वकील बन रहा है। गरीबों के हजारों गरीबों के बच्चे इतने शानदार अब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। गुजरात के अंदर भी हमने प्लान किया है, शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। गांव गांव के अंदर स्कूल खोलेंगे, नए नए स्कूल खोलेंगे, शानदार स्कूल खोलेंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हमने दिल्ली के अंदर, शानदार अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छे, उसमें सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। सबका इलाज, आपका 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सारा पैसा सरकार देती है। सारी दवाइयां मुफ्त। छोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, छोटी बीमारी है, सारे टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त। आपको बड़ी बीमारी है, बड़े अस्पताल में जाओ, सारा इलाज मुफ्त। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, अमीरों का भी गरीबों का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। गुजरात में भी 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, नए अस्पताल बनाएंगे जिसमें शानदार इलाज होगा, और 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबका इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपकी सरकार आपके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता इन लोगों की तरह। अगर गुंडागर्दी करवानी है, इनके पास चले जाना। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, इनके पास चले जाना। गंदी राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं स्कूल बना दूंगा। अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, आपके परिवार के इलाज का इंतजाम कर दूंगा मैं। मेरे को काम करना आता है, इन लोगों को गंदगी मचानी आती है। 27 साल तो हो गए इनको गंदगी मचाते मचाते। एक मौका मेरे को देके देख लो, एक मौका। 5 साल मांग रहा हूं आपसे, बस एक मौका देके देख लो। अगर स्कूल अस्पताल ना बनाऊं, अगली बार वोट मत देना। आप में से कौन कौन बेरोजगार है? सब लोग, कईयों ने 2-2 हाथ उठा रखे हैं। डबल बेरोजगार है। मैंने इनके एक नेता का इंटरव्यू देखा टीवी में।
उसे टीवी वाले ने पूछा कि गुजरात में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, आप रोजगार क्यों नहीं देते? बोले नहीं, बेरोजगारी नहीं है, ये जो बेरोजगार है ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करते, ये काबिल नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, ये हमारे बच्चों को निकम्मे बोलते हैं, गाली देते हैं। इनको इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया इन लोगों को। अरे निकम्मे तुम्हारे बच्चे हैं यार, हमारे बच्चे निकम्मे थोड़ी हैं, बेकार तुम्हारे बच्चे हैं। फिर भी तुम अपने बच्चों को चेयरमैन बना देते हो, एमएलए बना देते हो, फलाना। एक बार हमारे बच्चों को मौका दे के देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे ना छोड़ दें तो मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। इसका हमने पूरा प्लान बनाया है, हमें रोजगार देना आता है। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया है पिछले 7 साल में। भगवंत मान की अभी अभी सरकार बनी है, 6 महीने हुए हैं, इन्होंने 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं। 20,000। हमारी नीयत है, हमें पता है बेरोजगार होने का क्या मतलब है, एक आम आदमी पे क्या गुजरती है। हम आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं होता हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जब तक आपके रोजगार का इंतजाम नहीं होता। और पूरे गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जैसा मैंने बताया, खूब सारे नए स्कूल खोलेंगे, खूब सारे नए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, खूब नई नौकरियां निकलेंगी, सरकारी नौकरियां। 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी गुजरात के अंदर। रोजगार की कमी नहीं होगी, चिंता मत करना। अभी मैं कल वडोदरा जब गया, कुछ 5-7 लड़के खड़े थे, हमारा रोड शो चल रहा था, वो चिल्लाने लगे मोदी मोदी मोदी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी नारे लगाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर आपके बच्चों के लिए भी स्कूल का इंतजाम मैं ही करूंगा। आपके घर के लोगों के लिए भी अस्पताल का इंतजाम मैं करूंगा। आप जिसको मर्जी वोट दे देना, जो मर्जी वोट दे देना, जिसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी नजर आपके वोट पे नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका दिल जीतूंगा और आप भी मेरे साथ खड़े हो गए। मैंने उनको बुला के पूछा, मैंने कहा 27 साल में इन्होंने आपको क्या दिया, क्यों नारे लगा रहे हो? कहते सर नारे तो दिखाने के लिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। और मैंने पूरा गोपाल भाई के साथ, ईशुदान जी के साथ, मनोज जी के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई है हमने। जितनी सरकारी नौकरियां, तलाटी की, पेपर जितने बाकी हैं सारे 1 साल में पूरे कर देंगे। तलाटी की परीक्षा फरवरी के महीने में होगी और अप्रैल के महीने में नतीजे आके सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। टेट के पेपर जो हैं जून के महीने में होंगे। और जितनी पुलिस की भर्तियां बाकी हैं, जितनी दूसरी, दिसंबर के महीने तक सारी भर्तियां हो जाएंगी और कोई पेपर नहीं फूटेगा। पेपर फूटेगा तो जेल जाएगा वो आदमी 10 साल के लिए। यहां पे कुछ आदिवासी भाई भी आए हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, किसी सरकार ने पैसा कानून लागू नहीं किया, हम लागू करेंगे पैसा। जल, जंगल, जमीन के ऊपर आपका ग्राम सभा का अधिकार होगा, गांव का अधिकार होगा। जो गांव के लोग बोलेंगे उसी को लागू किया जाएगा। 5th शेड्यूल, संविधान का जो 5th शेड्यूल है उसको लागू किया जाएगा। मैं जानता हूं पैसा बहुत पहले लागू किया गया था, केंद्र सरकार ने कई साल पहले इसको लागू, लेकिन एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया। गुजरात पूरे देश में पहला राज्य होगा जहां पैसा लागू करके दिखाएंगे। अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। अभी भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, लेकिन अगले साल तक पूरा भव्य मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए? सब लोग जाना चाहते हैं, सबका मन करता है, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है। आना जाना, रहना, खाना पीना, और पूरा परिवार लेके जाओ तो और भी पैसे लगते हैं।
मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में। दिल्ली में हमने इंतजाम कर दिया। दिल्ली में हम लोगों को भेजते हैं भगवान राम के दर्शन कराने के लिए। पूरी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जाती हैं। आना फ्री, जाना फ्री, रहना खाना पीना सब फ्री। जब ट्रेन जाती है मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं स्टेशन पे। जब लोग आते हैं मैं उन्हें लेने जाता हूं। और जो आते हैं उनके चेहरे की खुशी देखने, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। यही तो कमाया है मैंने, और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरा। ये इतनी गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री क्यों देता है, केजरीवाल फ्री क्यों देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में हर परिवार को एक बेसिक बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये क्यों मेरा विरोध करते हैं? क्यों फ्री का विरोध करते हैं? कितना विरोध करते हैं? फ्री की रेवड़ी, फलाना ढिमका, इतनी गालियां देते हैं। ये इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि अगर फ्री में जनता को दे दिया तो इनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनवाऊंगा, ये कहते हैं नहीं स्कूल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनवाऊंगा, ये कहते हैं नहीं अस्पताल नहीं बनने चाहिए। इनको डर लगता है कि अगर केजरीवाल ने इतने स्कूल, इतने अस्पताल बना दिए तो इनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अगर कोई फ्री का विरोध करे, कोई बोले फ्री की रेवड़ी, समझ जाना उसकी नीयत खराब है। वो भ्रष्टाचारी है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो लूटना चाहता है। उसको डर लग रहा है कि अगर ये फ्री में जनता को मिलना चालू हो गया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनका पूरे गुजरात में इस टाइम आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी चल रही है कि नहीं चल रही है? कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। दिव्य शक्ति, कोई कुछ चमत्कार हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है? 6 महीने के अंदर पूरा गुजरात खड़ा हो गया है। जहां जाते हैं जनता ही जनता आ रही है। पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है। आंधी चल रही है गुजरात के अंदर। ऊपर वाला आसमान से झाड़ू चला रहा है। और जब से ये आईबी की रिपोर्ट आई है, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मेरे को पता चला है रोज 12 बजे इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है दोनों पार्टियों की। किसी भी तरह केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोको, चाहे किसी की सरकार बन जाए, इनकी नहीं बननी चाहिए। दोनों मिलके योजना बनाते हैं, अगले दिन फिर एक ही भाषा में गाली देते हैं। 10 बजे एक पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है, 12 बजे दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल महा ठग है। दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं। इनके भरोसे में मत आ जाना, और खासकर कांग्रेस से बच के रहना। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही हैं, और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। इनका भी कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। वोट बेकार मत करना, एक भी वोट बेकार मत करना। और आजकल इन बीजेपी वालों ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उनको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के बहुत वोट हैं, आके आपको चुपके से कान में बोलेंगे, हाँ यार केजरीवाल तो अच्छा है, पर अभी इस बार ये नहीं जीतेंगे, अगली बार। उनको बोल देना अगली बार नहीं, इसी बार। और अगर कोई आके आपके कान में बोले ना अगली बार, समझ जाना बीजेपी का है, समझ जाना बदमाशी कर रहा है। जो भी बोले अगली बार बोलना, अगली बार नहीं, इसी बार जिताना है, इसी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। अभी इसी बार दिसंबर में सरकार बनानी है। अब इनका अहंकार तोड़ना है। बहुत अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया। इस बार ऊपर वाले ने एक नई पार्टी भेजी है। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए विचार, नई राजनीति। एक बार मौका देके देखो इस नई राजनीति को। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 27 साल राज किया, तड़पा तड़पा के आपको मारा है।
मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मौका देखे देखो, 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी और आप खुशी के साथ अपना जीवन जियोगे। और मेरे को कई बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कई बीजेपी के नेता मिलते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं अपनी पार्टी से, बहुत दुखी, कहते हैं जी कुछ भी करो इस बार तो बीजेपी को हराओ। मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन अंदर डरे हुए हैं सारे, वो छोड़ के हमारी पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग गुंडे हैं, उनके धंधे बंद कर देंगे, उनका दाना पानी बंद कर देंगे, उनको तंग करेंगे। तो मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, नेताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहता है, आम आदमी पार्टी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, बीजेपी में रहो, वहीं से हराओ बीजेपी को, उनके खिलाफ काम करो, वहीं से हराओ। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी कहना चाहता हूं, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, देश की सोचो, गुजरात की सोचो। पूरे गुजरात के अंदर क्रांति चल रही है, पूरे गुजरात के अंदर एक नई हवा चल रही है, सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ, इस बार एक जोर का धक्का मार दो और एक नया गुजरात मिलके बनाएंगे हम सब लोग। जैसा मैंने बोला था, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है लेकिन कम मार्जिन से बन रही है। आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यहां जितने भी लोग हैं, यहां से जब निकलोगे, अपने अपने व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं, सब लोगों को एक मैसेज भेजना। मैसेज में लिखना कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस बार बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। मेरे भाई, तेरे से विनती है, तू भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दियो। ऐसा मैसेज बना के जितने आपके व्हाट्सएप में, सबको व्हाट्सएप करोगे कि नहीं करोगे? बाहर निकलने के बाद तुरंत सबको व्हाट्सएप करना, और गांव गांव में, अपने गांव में जाके, घर घर में जाके कम से कम 100 लोगों को आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार करना है। करोगे? भारत माता की इनकलाब। આપણે સૌ પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ રાષ્ટ્રગાન માટે આપણે તૈયાર થઈશું અને કોઈ પણ પોતાની જગ્યા આપણે છોડીશું નહીં। રાષ્ટ્રગાન ગાઈને પછી આપણે સૌ છૂટા પડીશું। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे,